All right, good morning, everyone. So today, for this English class, we are going to start up with the next topic, that is the communication process. So firstly, I'm going to share the PPT with everyone, and then we'll start discussing. Okay, is this visible to everyone? Is this slide visible to everyone? Bachi, kindly respond. Yes, ma'am. Okay. So, Bachi, what do you Yes, ma'am. understand by communication process? We have already talked about कि communication क्या है, और अगर communication process की बात करें, so is there any difference between when I use the word communication and communication process? कोई difference होगा दोनों में? When I say that what is communication and when we talk about communication process? Okay, so when we talk about मैम थोड़ा थोड़ा होगा डिफरेंस. हाँ जी, थोड़ा सा difference है, sorry. So the difference is that when we talk about communication, so in communication we just talk about कि there is a sender and the sender sends the message to the receiver, and then receiver, sends back a reply to the sender, right? But when we talk about communication process, जब हम communication process की बात करते हैं, so there are few other terms as well जो हम like we discuss this thing of communication in detail. When we talk about communication process, तो हम ये communication का जो entire process है, इसको detail में study करते हैं. For example, there are few other terms जो हमने पहले नहीं पढ़ी, right? And neither we talked about them, right? But here, when we talk about communication process, we are going to discuss those terms in detail. Is that clear to everyone? ठीक है बच्चे, समझ आया कि दोनों में हल्का सा डिफरेंस है. बस ये है कि जो कम्युनिकेशन हमने पहले पढ़ी कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, उसमें सिर्फ हमने ये बात करी थी कि कम्युनिकेशन इज सॉर्ट ऑफ अ प्रोसेस और एक्ट जिसमें हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, राइट? एंड देन वी डिस्कस्ड just hold on for a minute. Okay, and then we discussed that and if you talk about a communication process, तो communication process में क्या होगा कि कुछ और terms हैं जो आपने शायद पहले ना सुनी हो, उनके बारे में हम अब बात करेंगे. All right, so let's start with this topic. First, like before talking about the process of communication, we'll look into the elements of communication. Okay, कि communication जो है उसके elements क्या हैं, communication का जो process है वो किन किन चीज़ों से बना होता है, and what are the things which are required for this process of communication. All right, so सबसे पहले हमने इनमें से दो तीन चीज़ों के बारे में ऑलरेडी बात करी हुई है. We have talked about that we need a sender. हमें एक we need a sender, और एक हमें रिसीवर चाहिए होता है which is here. And then we have talked about कि अगर सेंडर है, रिसीवर है, और इसके साथ we would need a message as well. अगर ये तीन चीजें नहीं होंगी तो कम्युनिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगी, राइट? सो सिमिलरली हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा यहाँ पे? सेंडर. तो सेंडर कौन है? सेंडर बेसिकली इज द पर्सन हु इज गोइंग टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, right? And any process of communication always starts with the sender, right? And then you can also say that sender is the person who sends the message or encodes the message. Encoding word के ऊपर हम इसके बाद आएंगे. So basically sender क्या है? सेंडर ऐसा इंसान है जिससे हमारी जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है. ही इज द पर्सन जो इनिशिएट करता है एक कम्युनिकेशन की प्रोसेस को, राइट? नेक्स्ट वन इज मैसेज. सो मैसेज के बारे में भी हमने पहले पढ़ा था. सो मैसेज क्या है? कोई भी फिजिकल फॉर्म में हमारा जो आइडिया या इंफॉर्मेशन है विच इज टू बी कन्वेड टू द रिसीवर, राइट? और रिसीवर is going to understand that information, and the person is going to understand it by using his or her senses.
Adeshwar, Picha, you always have a problem with the audio, so I don't feel other students have it. I guess the problem is at your end. So message is basically something which is received by the receiver and then receiver tries to understand it. Okay? So it is basically your ideas and thoughts, emotions, or any concept or any sort of information which is sent by the sender. And it is always in a, we can say that it is in a physical form. Next we have encoding. Now encoding is a word which must be new for everyone, right? So encoding जो word है बच्चे, it is made from the word code, और code से हम कह सकते हैं कि encode बना and then encoding. So encoding is basically putting meanings to the message. हमारे जो messages होते हैं, whatever we try to send, the sender basically tries to send, जो भी sender एक मैसेज भेजने लगता है और वो टाइम जो बीच में ही थिंक्स थी, जब भी हम कोई मैसेज भेजते हैं तो बिफोर सेंडिंग इट वी ऑलवेज थिंक अपॉन इट, हम उसके बारे में सोचते हैं कि क्या मैसेज भेजना है, या जब भी हम कुछ बोलते हैं हम सोचते हैं पहले. सो दिस इज अ थिंकिंग प्रोसेस, देयर इज अ थिंकिंग प्रोसेस विच इज गोइंग ऑन इन योर माइंड. ठीक है, सो जब भी हम कुछ बोलते हैं वी थिंक अबाउट इट फर्स्ट एंड देन वी यू नो उसको बोलते हैं या उसको कन्वे करते हैं. सो इनकोडिंग क्या है बेसिकली, जो हमारे आइडियाज हैं, आइडियाज कहाँ पे हैं, हमारे ब्रेन में है, हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस, ये सारे हमारे ब्रेन में है, वी आर थिंकिंग. तो उस थिंकिंग को बेसिकली वर्ड्स में डालना, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इनकोडिंग कहते हैं. सो इनकोडिंग इज बेसिकली पुटिंग द मीनिंग ऑफ द मैसेज इनटू एप्रोप्रिएट वर्ड्स, या कोई भी सिंबल्स या जेस्चर्स या कोई भी अदर फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन. ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ सेंडिंग एन intentional message. Got it? Encoding समझ आ गया सबको? Because अभी तक ये थोड़ा जो term है ये this must be new. Are you clear? Yes, ma'am. Okay. So moving to the next term, we have channel. Channel के बारे में कल हमने एक point पढ़ा था. When I told you that we are going to discuss this in the next you know lecture कि channels क्या होते हैं. जब हम essentials of effective communication पढ़ रहे थे तो उसमें एक point था कि we have to pick appropriate channels or modes or medium. तो सेम चीज है कि channels क्या है. अब चैनल बेसिकली एक मीडियम होता है. ठीक है, चैनल को हम मीडियम भी बेसिकली बोल सकते हैं. सो इट इज बेसिकली अ मेथड और व्हीकल. ठीक है, एक तरह का तरीका होता है जिसको यूज करके हम मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं या सेंड करते हैं. राइट, तो चैनल एक तरह का जरिया है जिसके थ्रू हमारा मैसेज सेंडर से रिसीवर तक पहुंचता है. और चैनल्स के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होते हैं, हमारे पास अलग अलग तरीके के चैनल्स अवेलेबल हैं. हमारे पास फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स हैं. इफ यू वांट टू सेंड अ मैसेज टू समवन, ठीक है, आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो, यू कैन राइट अ लेटर, आप लेटर भेज सकते हो, आप टेलीफोन कॉल कर सकते हो, फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर सकते हो. सो ये सारे क्या है, ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सेंडर जो है वो बेसिकली अपना मैसेज रिसीवर तक पहुंचा सकता है. और सेंडर हमेशा अपना चैनल खुद चूज करता है कि वो कौन सा चैनल पिक करके मैसेज को सेंड करेगा. और चैनल्स जो है बच्चे वो सिचुएशन के हिसाब से पिक करे जाते हैं कि कौन सी सिचुएशन में कौन से टाइम पे बेस्ट पॉसिबल चैनल कौन सा होगा. इफ वी कैन टेक एन एग्जांपल, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर आपको किसी को इमरजेंसी कॉल करना है या इमरजेंसी इंफॉर्मेशन कोई देनी है, ठीक है, एंड यू वांट कि वो इंफॉर्मेशन विद इन एन आवर उस इंसान तक पहुंच जाए, 1 घंटे के बीच बीच में उस इंसान तक वो इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंच जाए, तो आप क्या मेथड चूज करोगे या क्या चैनल चूज करोगे अगर वो इंसान आपके पास नहीं है. हाँ जी, what channel are you going to use?
Is my voice audible? Yes, ma'am. हाँ जी बच्चे, तो क्या चैनल चूज करोगे अगर आपने किसी को कोई भी इमरजेंसी इंफॉर्मेशन देनी है, आपके पास टाइम कम है, तो आप कैसे उसको कन्वे करोगे मैसेज? दिस इज नॉट समथिंग डिफिकल्ट टू आंसर। आप फोन कॉल कर सकते हो या नहीं? Yes, ma'am. राइट, सो आप कौन सा चैनल या मीडियम चूज कर सकते हो? यू कैन पिक कॉलिंग एज अ चैनल और अ मीडियम। तो सिमिलरली अगर वो इंसान आपके बिल्कुल पास में बैठा है, तो आप कॉल नहीं करोगे, यू आर गोइंग टू पिक अनदर चैनल दैट इज गोइंग टू बी फेस टू फेस कम्युनिकेशन। तो जो सेंडर है वो अपने अकॉर्डिंगली चूज करता है कि कौन सा उसने चैनल पिक करना है। ऑलराइट, तो चैनल समझ आ गया सबको कि एक तरह का हमारा इट इज अ, इसको हम मीडियम भी कह सकते हैं, चैनल या मीडियम। तो एक तरह का ये मेथड है जिसके थ्रू या बाय यूजिंग व्हाट वी कैन ट्रांसमिट आवर message from the sender to receiver. Moving on to the next point or the next element, we have receiver. So we have already talked about the receiver कि receiver कौन होता है? Receiver is the person जो हमारे message को receive करता है, and then we can say that receiver is the person who receives the message or perceives the message and then attaches some meaning to it. ठीक है, कि कोई भी अब रिसीव हो गया मैसेज, मैसेज रिसीव करने के बाद में उसको अंडरस्टैंड भी करेगा वो। ही वुड नीड टू अंडरस्टैंड इट, ही वुड नीड टू रीड इट, या उसको सुनेगा और सुन के या पढ़ के फिर उसको समझेगा, राइट, कि क्या बोला जा रहा है, क्या मैसेज दिया जा रहा है, राइट। सो रिसीवर कौन होता है? रिसीवर इज द पर्सन हु रिसीव्स द मैसेज और वो क्या करता है? वो मैसेज की डिकोडिंग करता है। अब डिकोडिंग क्या है? वो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है। डिकोडिंग बच्चे बेसिकली जो मैंने अभी बोला आपको कि मीनिंग अटैच करना मैसेज को। आपने एक मैसेज रिसीव करा, आप तक पहुंच गया, और आप तक जब पहुंचा, देन आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू रीड इट और लिसन टू इट, जिस भी फॉर्म में होगा। हो सकता है मैसेज रिटन फॉर्म में हो, कोई टेक्स्ट मैसेज हो, या मैसेज ओरल फॉर्म में हो, किसी की फोन कॉल हो, या कोई वॉइस मैसेज हो, या कोई ऑडियो हो। तो उसमें क्या होगा, आप जो रिसीवर है वो उस मैसेज को रिसीव करके उसको अंडरस्टैंड करेगा, ठीक है, उसको सुनेगा या उसको पढ़ेगा जिस भी फॉर्म में मैसेज रिसीव हुआ है, एंड देन उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा। रिसीवर उसके अंदर एक मीनिंग अटैच करेगा उससे कि ओके, दिस इज व्हाट दिस मैसेज मीन्स, राइट। सो अपने सारे सेंसेस लगा के he or she would try to understand the meaning of the message, राइट। तो डिकोडिंग जैसे इनकोडिंग है मैसेज को बनाना, ठीक है, कुछ चीज कोड करना, किसी चीज की कोडिंग करनी। डिकोड होता है जैसे उसको ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, ट्राई टू फिगर आउट कि क्या चीज है एग्जैक्टली, टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, ठीक है। तो जो हमारा डिकोडिंग है वो एक तरह से उसका उल्टा है इनकोडिंग का। इनकोडिंग इज मैसेज को बनाना, decoding is message को try to you try to understand the message, and that is known as decoding. Got it? Next one is, and the last one is feedback. अब feedback क्या है? Feedback is a sort of a reply which is sent by the receiver to the sender, ठीक है। so जो हमारा sender है, sorry receiver है, he is going to give feedback to the सेंडर, मतलब वो एक तरह से रिप्लाई करेगा यहाँ पे। अब क्या हो जाता है यहाँ पे, एक तरह से रोल रिवर्सल हो जाता है। वी कम टू इट लेटर ऑन, बट यू जस्ट नीड टू रियलाइज कि फीडबैक क्या है। फीडबैक इज बच्चे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ एनी प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। अगर हम किसी भी प्रोसेस की बात करें, कम्युनिकेशन की प्रोसेस की बात करें, तो फीडबैक जो है इट प्लेज a very vital role in the process of communication. अगर फीडबैक नहीं होगी तो सेंडर को पता ही नहीं चलेगा कि रिसीवर को मैसेज पहुंच गया है या नहीं पहुंचा है। So to understand it, to
टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारा रिसीवर है वो फीडबैक दे सेंडर को, एक तरह से एक कोई भी रिप्लाई करे सेंडर को, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारे हमारे एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। इज दिस अंडरस्टूड टू एवरीवन? सारे एलिमेंट्स समझ आए हैं? एनी डाउट इन एनी ऑफ दीज? All right, so we'll move to the next one now. So next, we are going to talk about is one-way communication and two-way communication. All right. One-way communication is बच्चे जब हमारी जो communication है वो sender से receiver तक होती है। अगर हम पिछला अपना देखिए डायग्राम, ये जो है एक चार्ट है, तो यहाँ पे क्या है कि ये सेंडर है और यहाँ पे रिसीवर है। सो व्हेन द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इज फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, दिस इज ओनली इन वन डायरेक्शन, लीनियर डायरेक्शन है हमारी, फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रहा है मैसेज, राइट। सो दैट इज व्हाई दैट इज अ वन वे कम्युनिकेशन। अगर टू वे कम्युनिकेशन की बात करें तो मैसेज सेंडर से रिसीवर तक और रिसीवर का रिप्लाई मतलब फीडबैक फ्रॉम रिसीवर टू सेंडर। तो ये क्या होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड देन राइट टू लेफ्ट, ये दो साइड्स पे जा रही है, पहले लेफ्ट टू राइट एंड देन राइट टू लेफ्ट। सो दिस इज अ टू वे कम्युनिकेशन। ऑलराइट, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन वन वे कम्युनिकेशन एंड टू वे कम्युनिकेशन, राइट। अगर हम वन वे कम्युनिकेशन को देखें तो देर इज नो फीडबैक इन वन वे कम्युनिकेशन, राइट। द मैसेज इज सेंट बाय द रिसीवर and it is received by the receiver. On the other hand, if you look at the two-way communication, feedback is sent, right? So two-way कैसे होगी, तभी होगी जब सेंडर से रिसीवर तक मैसेज पहुंचा है और रिसीवर ने फीडबैक भी दिया है सेंडर को, राइट। सो दिस इज द मेन डिफरेंस, द मेजर डिफरेंस, कि वन वे कम्युनिकेशन में कोई फीडबैक नहीं होती, टू वे कम्युनिकेशन में हमेशा फीडबैक होती है। All right. And if you look at one-way communication, the process is very speedy. ठीक है, बहुत speedy है, because sender just needs to send the message और उसके बाद he or she is not bothered that whether the receiver has received the message or not, because उसको पता चलना ही नहीं है। So once the sender has sent the message, एक बार sender ने अपना message send कर दिया तो his work is done. So that is why it is known as कि ये बहुत ही speedy communication है। On the other hand, if you talk about two-way communication, it is time consuming, but sometimes, not always. If somebody is having face-to-face communication, कोई आप किसी के साथ बैठे हुए हो और आप communicate कर रहे हो, तो उस environment में ये time consuming नहीं होगी, क्योंकि आपको साथ के साथ आपके फीडबैक मिल रही है और कंप्लीट प्रोसेस हो रही है, टू वे प्रोसेस हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ऑनलाइन क्लासेस की बात करें, व्हेन आई आस्क यू क्वेश्चन यू रिप्लाई इमीडिएटली, so that is a two-way communication and this is not time consuming, right? On the other hand, if you pick another channel or medium like letter writing या नोटिस, ठीक है, आप ऐसा कोई मीडियम चूज कर रहे हो, या टेक्स्ट मैसेज ही ले लो, तो टेक्स्ट मैसेज में आप सेंड करते हो फिर आपको रिसीव होता है। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, चाहे टू वे कम्युनिकेशन है बट दिस इज गोइंग टू बी टाइम कंज्यूमिंग। आपने मैसेज भेज दिया और वो मैसेज कब उस इंसान ने देखा, पढ़ा और रिप्लाई करेगा, इट इज गोइंग टू डिपेंड ऑन his situation, his circumstances. So in such situations, it gets a little time consuming. Looking at the third point, under one-way communication, so we have information shared with the response. So जो भी कोई information is shared without a response. So जो हमारी one-way communication होती है उसमें जब हम information share करते हैं, that means sender sends the message to the receiver, so there is no response from the receiver side. So receiver जो है हमारा वो हमें reply नहीं करेगा. On the other hand, if we look under the two-way communication process, तो two-way communication में क्या होता है, information जो होती है वो back and forth हमेशा travel करती रहती है। तो जो सेंडर है, सेंडर से रिसीवर तक, रिसीवर से सेंडर तक, from left to right, right to left. So it will keep on moving. It is a sort of cyclic process. So communication जो है वो circular
मोशन में इट विल कीप ऑन गोइंग, ये चलती रहती है. So that is why जो टू वे कम्युनिकेशन है उसमें कैसे शेयर होती है बैक एंड फोर्थ इंफॉर्मेशन. Looking at the next point, under one-way communication, it says that it does not ensure accurate understanding of the message. This is very obvious. अगर हमारा रिसीवर जो है वो हमें रिप्लाई नहीं करेगा, हमें साथ के साथ अगर उसको कोई डाउट है मैसेज पढ़ के, मैसेज को डिकोड करके, इफ ही और शी इज हैविंग सम सॉर्ट ऑफ डाउट, तो अगर वो डाउट ही नहीं पूछ पाया तो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी उससे मैसेज की एक्यूरेसी. हो सकता है वो मैसेज को किसी और तरीके से इंटरप्रेट कर ले, एंड दैट वाज नॉट द मीनिंग द मैसेज द सेंडर वाज ट्राइंग टू सेंड. सेंडर कुछ अलग सेंडर ने कुछ अलग मैसेज सेंड करा है, बट रिसीवर ने उसको मिस इंटरप्रेट करके कुछ अलग मैसेज को अंडरस्टैंड कर लिया है. तो उस सिचुएशन में एक्यूरेसी खत्म हो गई, चेंज हो जाएगा मीनिंग, क्योंकि रिसीवर कंफर्म नहीं कर पाएगा. रिसीवर उसको सेंडर को दोबारा अगर उसने पूछा ही नहीं या पूछ नहीं पाया, तो दोनों सिचुएशंस में क्या होगा कि हमारा मैसेज जो है उसकी एक्यूरेसी चेंज हो जाएगी. अगर हम टू वे कम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ पे एक्यूरेसी जो है वो हमेशा रहती है, क्योंकि सेंडर जो है वो रिसीवर को जब मैसेज भेजेगा तो रिसीवर वापस उसको रिप्लाई करेगा, फीडबैक देगा. अगर कोई डाउट होगा तब वो भी क्लैरिफाई करा जा सकता है, या अगर कुछ नहीं समझ आया है तो इट कैन बी आस्क्ड देयर एंड देन, साथ के साथ वो चीज़ क्लैरिफाई करी जा सकती है. पर वन वे कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं होता. Looking at the second last point under one-way communication, it says that it is not a complete communication system. So communication system complete क्यों नहीं है? क्योंकि it is only one-way communication. It is from sender to receiver. और complete कब होती है process when it goes from sender to receiver and then from receiver to sender in the form of feedback. तो वो कहाँ होता है? वो टू वे कम्युनिकेशन में होता है. तो हमारा जो टू वे कम्युनिकेशन है उसे हम क्या कहते हैं? इट इज अ कंप्लीट कम्युनिकेशन सिस्टम. ऑलराइट, if you look at the last point, it says that it does not create better understanding with the sender and the receiver. That is, again, it is very obvious. There are no doubts in this that when there is not going to be any sort of feedback from the receiver, जब तक receiver और sender आपस में अच्छे से कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे, तो ऑब्वियसली वहाँ पे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो ही नहीं सकती. टू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग, टू हैव क्लैरिटी ऑफ द मैसेज, it is very important that there is you know very बहुत एक ऑफन कांटेक्ट है, इमीडिएटली एक दूसरे को कांटेक्ट कर पा रहे हैं सेंडर एंड रिसीवर. सो अगर ऐसा सिचुएशन है तो ऑब्वियसली हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर, इट इज गोइंग टू बी बेटर. इज दिस क्लियर? वन वे कम्युनिकेशन एंड टू वे कम्युनिकेशन समझ आया सबको? So feedback जो है बच्चे, it is one of the most important thing when we talk about the process of communication. Why? Because see, अगर किसी को feedback ना दी जाए, if you do not reply to someone, आपको कोई message ही, या you take it as yourself, अपने आप को situation में रखो कि if you send a message to somebody and then that person does not reply to your message, तो आपको irritation होगी, आपको समझ नहीं आएगा कि whether the person has received the message, understood it or not, right? तो वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए अगर देखो हम इफ यू यूज इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स, इफ वी यूज फॉर एग्जांपल हम व्हाट्सएप यूज करते हैं सारे. व्हाट्सएप में जब आप किसी को मैसेज सेंड करते हो तो देयर इज दिस ऑप्शन के व्हेन यू सेंड अ मैसेज, तो अगर तो मैसेज सेंड हो गया तो वहां पे एक सिंगल टिक आता है. अगर फॉर एग्जांपल कोई आपकी कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है तो वहां पे एक डिफरेंट साइन आता है विच इज sort of a circle with a dot in it, ऐसा कुछ साइन होता है. तो अगर सिंगल टिक आया उसका मतलब क्या होता है? कि मैसेज आपने भेजा, मैसेज चला गया है आपकी तरफ से, लेकिन अभी जो रिसीवर है वहां तक नहीं पहुंचे क्योंकि उसका इंटरनेट बंद है. इफ इट कन्वर्ट्स इनटू डबल टिक मींस कि मैसेज अब है जो वो पहुंच गया है रिसीवर तक. नाउ व्हेन द double tick, it turns blue in color, so that represents that
the message has been read, right? So ये क्या तरीका है फीडबैक देने का, तरह का रिप्लाई है, तो वो मैसेज को रिप्लाई करते हैं। बच्चे काइंडली सो ये जो छोटे छोटे सिंबल्स होते हैं ये भी हमें कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करते हैं. दे ऑल्सो टेल अस समथिंग दैट व्हाट इज हैपनिंग एंड दे आर सॉर्ट ऑफ helps us to understand what is going around. Just imagine अगर WhatsApp आप use करो and there are no such signs, there is no double tick option, no single tick, you just send the message और आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमें तो ये ऑप्शन भी आता है ना कि कब डिलीवर हुआ, कितने बजे सीन था एंड थिंग्स लाइक दैट. तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करती हैं टू अंडरस्टैंड, टू एनालाइज कि कब मैसेज रिसीव हुआ, कब तक पढ़ लिया, कब तक रिप्लाई आएगा, थिंग्स लाइक दैट. सो if the WhatsApp you use it's without all these symbols, all these signs, so then it is going to be really irritating, right? So ये जो feedback है it is very important. एक तरफ जब मैसेज आता रहता है वहां से दूसरी तरफ से रिप्लाई नहीं आता तो it gets really annoying. एंड सेंडर को समझ नहीं आता कि उसका जो पर्पस है ऑफ डूइंग दैट कम्युनिकेशन वो सॉल्व हो गया है या नहीं हुआ है. सो टू complete the process of communication, the receiver should always send the feedback to the sender. And then we talked about one-way communication and two-way communication. So when the communication process is from sender to receiver, then it is one-way communication. And when it is from receiver to sender to receiver, receiver to sender, complete cycle, so then it is a two-way communication. And in two-way communication, feedback is always sent. I hope this lecture is clear to everyone. Is there any sort of doubt to anyone? All right, so I am going to end this session now. Thank you everyone for joining this class.